ओके चलो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा सपोजिंग देखो मैं तुम्हें बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं तुम्हारे पास में। तो एक तो जैसे तुम्हें पहले ही मैंने बताया था कि कुछ एल एम एन की वैल्यूज दी जाएंगी और तुमसे बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पॉसिबल कैन बी द पॉसिबल क्वांटम नंबर्स। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने किया था ना कि एन एल की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन एन। बिकॉज वाई शुड बी लेस देन एन? Because what are the Because the possible, value of L always ranges from 0 yes, to possible values of L starts from 0 to n minus 1। ठीक है, तो ये इसलिए होना चाहिए। देन जो m की वैल्यू है इट सॉरी L is less than n। ओके m की जो वैल्यू है एंड L की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव ऑल्सो, L इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सो L कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे पास आ सकते हैं। देन m की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इट कैन बी equal to or lesser than the value of L। Okay, and it can have negative values also, negative values भी हो सकती हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? and because Because the the value of value m ranges from minus L ranges to from plus L. minus Is L to equal plus L. minus L to plus L, and it also includes 0, including 0 and S की कल तो हमने समझ लिया ना, S की सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, कौन कौन सी, प्लस And plus हाफ half and और Plus minus. half and minus वन half. और जीरो, नथिंग एल्स इज पॉसिबल। ठीक है, सो अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया, तो इफ समवन आस्क्स यू, Ma'am, हाँ, I had a doubt with the spin quantum number. व्हाट इज योर डाउट? Ma'am, why do we take it as minus half and plus half? Ma'am, why not any? Clockwise and anti-clockwise direction. I told you na, they spin along their axis. Electrons spin along their axis. Spin along their axis. So if Yes, anything is ma'am. spinning along their axis, what are the possible ways? What are the, Clockwise and so anti-clockwise. if one is rotating along supposing this is rotating along anti-clockwise direction, तो वो तुमको राइट हैंड रूल बताया था ना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, Yes, ma'am, है ना? anti-clockwise. एंड अपवर्ड मतलब वाई एक्सिस में अपवर्ड जा रही है, तो कैन आई से इट इज प्लस हाफ, प्रोबेबिलिटी इज 2 एंड उसमें से एक डायरेक्शन हमने चूज कर दिया, तो कैन आई से प्लस हाफ। Yes, ma'am. Got Another electron will can rotate in the clockwise direction. So clockwise direction is like this. So if you're rotating in the clockwise direction, your electric field is going to be downward, and that is minus half. So spin can be of only two types, clockwise or anti-clockwise. Now getting it? Yes, ma'am, got it. Okay. मैम 11th में श्रोडिंगर्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जितने पूछे जा सकते हैं उतना हम कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है उसमें, जो कि तुम्हारे सिलेबस में 12th तक में भी पार्ट नहीं है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तुम्हें सिर्फ dy by dx सिलेबस का पार्ट है 10th 12th तक। गेटिंग इट? ओके मैम। ठीक है, following now, and that is the reason only two electrons exist in an orbital। याद आया? ऐसे करवाया Yes, था ma'am. orbital, because equal and opposite forces they cancel out, so F net becomes 0। fine fine now, any other Yes, ma'am. doubt? क्योंकि शुरू शुरू में देखो नई नई चीजें पढ़ रहे हो तो डाउट्स आएंगे ही, तो प्लीज दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू मोर टाइम टू सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि तुम्हें समझना जरूरी है। So revise and see videos, or you revise your class notes which you have written as much as you can. Read it from the book। मतलब दिन का 2 बारी तो कोशिश करो कि कर ही लो इसको। रीडिंग तो कर ही सकते हो ना, it won't take much of a time, reading of your class notes or your school book or any other help book which you have been prescribed by the school. Can you do this much? Because these are many new things which are coming together. So let's Yes. proceed further. So supposing the question is there, what write all the quantum numbers of, supposing I say last electron of chlorine, last electron of chlorine. So how will you do it? First thing is you will write the electronic configuration. So what is the electronic configuration of chlorine? It is 1s2. What is the atomic number of chlorine?
मैम क्या? 17, तो 17. लिखो 1s2, फिर क्या होगा 2p6, कितने 2p6, इलेक्ट्रॉन्स हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो फिर आगे बढ़ जाओ 3s2 एंड देन कितने हो गए? 10 + 2 = 12, कितने बचे? How many electrons are left? 5, 5. And So 5. 6 can P2 3p can accommodate how many maximum? मैम 6. तो p5 हो जाएगा. Can you Yes, follow? ma'am. A p orbital. Where is your last electron? Where is the valence electron? Last electron is also called as valence electron. So where is the valence electron? Where will it be? So according to Hund's rule of maximum multiplicity, I'll put my electrons like this first, and then we will start pairing. So where is the last electron? This is the last electron. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So what is the n value for this? This is representing which or subshell 3p. What is the n value for this? 3. What is the L value for this? 0. 0. 1. Oh, sorry. Because it is representing the p subshell. P subshell is oriented along one axis. Okay, ma'am. Getting it? Then what is the m value? M values will be तीन घर हैं तो तीनों घरों को हमें एड्रेस देना Ma'am, पड़ेगा 0. ना. M value will be Yes. 0. So m value will be 0. And spin is what? Because it is paired or unpaired. Ma'am, minus half. It Minus. is paired, so it is -1. Can you get it? Yes, ma'am. Okay. Supposing I say write all the quantum numbers of second last electron of oxygen. Try करो. Tell me how will you write the electronic configuration? तो देखो 1s 2s 2p ऐसे लिख लेना है अपने को. ठीक है. 2p एंड देन कौन आता है? 3s 3p. 20 से बिलो हो तो इतने लिख लो. फिर देखो इसमें 2 जाएंगे, इसमें 2 जाएंगे. 2 + 2 कितना हो गया? Ma'am, 4. 4. तो इसके लिए Ma'am, कितना बचा? 2p4. 4. Ma'am, तो ये सब यहाँ तक 8 फिल हो गया, तो ये 0 कर देंगे. कैन यू फॉलो इट? yes, ma'am. Ma'am, the n value is 2, the L value is 1, the M value is Yes, -1 ma'am. or M plus value is 1, -1 or and S +1, and value spin is is -1. So see, this one is your last electron, and Yes, this ma'am. is going to be the second last. Yes, ma'am. So इसके लिए n value कितनी है? 2. L Two. value क्या है? कौन से सबशेल में लाई कर रहा है? Ma'am, P subshell so 1. And then what will be the m value? It can be -1 or It can be -1 or +1. very good. And then the last thing is And the S value is plus +1. half. s value is +1. Can you follow now? Yes, ma'am. ओके. ठीक है. तो अगर ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर्स लिखने को आएगा तो अब लिख पाओगे? Yes, ma'am. Okay, now see how to write the electronic configuration of ions. अभी तक हमने electronic configuration of atoms लिखना सीखा था. Now can we write electronic configuration of ions? ठीक है. आयंस भी तो होते हैं ना, उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. बट उससे पहले लेट अस राइट द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो तुम्हें कल कितने तक की एटॉमिक नंबर तक की बोली थी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने Till को? 30. 30 तक. वो तुम्हारे सिलेबस में जनरली 30 तक की ही है. तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So see what happens is as you move away from the orbit of away from the electron, as we move away from the electron, what happens? The orbits start becoming elliptical. Summerfield's theory. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And because of this elliptical nature, what happens? Orbits overlap.
ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं, Yes, ma'am. they start overlapping or intermingling inside each other. ठीक है. Now due to this intermingling, what happens is जो सबशेल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी लगभग एक बराबर होती है. ठीक है. जैसे अभी हमने देखा था ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से n इज इक्वल टू 4, तो 4s और कौन सा था 3p, दोनों की एनर्जी सेम है कि नहीं है? 3 + 1 करोगे और 4 ऑफ बाउस रूल के हिसाब से देखो तो Yes. don't they have the same energy? Or if n is equal, sorry, n plus l is equal to 5, तो 3d 4p 5s इनकी सेम एनर्जी है या नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट n plus l is equal to 6 की बात करो तो तुम्हारे पास 4f की एनर्जी कितनी आ जाएगी? नहीं 7 हो जाएगी शायद, सॉरी. यू विल हैव व्हाट, एक तो 7s 6s होगा, 5p होगा और 4D. 4d होगा. 4D. देखो इन तीनों की एनर्जी सेम होगी कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. तो अगर एनर्जी सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जंप मार सकते हैं एक दूसरे सबशेल्स में और नॉट. Yes, ma'am. ओके. सो इफ दे यू हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर, जिसकी वजह से और ऑर्बिट्स भी ओवरलैप कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स डेवलप अ टेंडेंसी ऑफ ओवरलैप ऑफ jumping from one subshell to another. Electrons jump from one subshell to another. लेकिन तुम जंप करोगे तभी जंप करोगे ना जब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे वहां जाने पे कुछ फायदा हो रहा है, तभी तो जंप करोगे. अगर तुम Yes. वहां जाने पे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो हम क्यों जाएंगे? नहीं जाना चाहेंगे ना. हम तो न्यूक्लियस से भी दूर जा रहे हैं, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी खत्म हो रहा है, हमारे टीचर्स अटेंशन भी खत्म हो रहा है. अगर हमें कहीं जाने पे फायदा हो रहा है तभी तो हम जाएंगे, अदरवाइज व्हाई विल वी वेस्ट आवर टाइम? तो यहाँ फायदा होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे सबशेल में जंप करने के लिए. तो वो फायदा क्या होता है? सो उसके लिए ये फायदा होता है कि जो अब तुम्हें याद होगा, मैं कल क्लास में लिख रही थी हाफ फिल्ड सबशेल and fully filled subshell. Fully filled subshell. So they happen to attain highest stability. Highest stability. अब क्यों ऐसा होता है? देखो हाफ फील्ड सबशेल में क्या होता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन. कैन यू सी? जैसे अगर p की बात करें तो हाफ फील्ड कब होगा? p3 में. तो see all the electrons are rotating in one direction. Can you follow this? Can you follow this? In this Yes, case, ma'am. they are rotating in one direction. That means there is no electron who is repelling them. तुम्हारी जैसी मर्जी Yes, है, ma'am. तुम वैसा काम कर रहे हो, कोई रिपल्शन नहीं आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं आ रही है, तो डोंट यू थिंक यू विल बी मोर स्टेबल? You will enjoy being there. There is no teacher, there are no parents, no one is bothering you. So don't you think you will be much more at ease? Yes, ma'am. Yes, That is ma'am. the reason half-filled subshells tend to show more stability. अगर यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाए तो ये क्या कर रहा है, ये इसको ऑपोजिट कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमें. ठीक है. मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे जो बैठा हुआ है, वो उसको दुखी हो रहा है कि भाई तुम दोनों तो फ्री घूम रहे हो और मेरे को जबरदस्ती बैठा करके मतलब बैठाया जा रहा है. जैसे होता है ना कि हम खेल रहे होते हैं, हमारे कोई ट्यूशन टीचर आ जाते थे तो हमें प्रॉब्लम होती थी कि बाकी लोग खेल रहे हैं और हमें ट्यूशन टीचर के साथ बैठना पड़ता है. तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और कुछ पेयर्ड होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है. अगर सारे के सारे अनपेयर्ड हैं तो खुशी है कि नहीं है? बोलो खुशी Yes. है या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. और अगर ऐसा भी कंडीशन हुआ तो भी प्रॉब्लम है कि भाई मेरे घर में कोई नहीं रह रहा, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है. तो कब जब सब लोग एक जैसे बराबर है कि सब के सब बैठ के पढ़ रहे हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना. अदरवाइज एक बाहर खेल रहा होता है तो बड़ा दुख होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे Yes, फ्रेंड्स ma'am. में से अगर कोई बाहर क्लास बंक कर रहा था, यू फील सो वियर्ड, यू डोंट ट्राई टू कंसंट्रेट. तो वही चीज है यहाँ पे, सब एक ही कंडीशन में है, सो दे आर टोटली वेरी
happy with that. Similarly, when you talk about fully filled orbital वाले केस में क्या होने वाला है? Now see, this is like this, this is like this, and this is like this. और you can say P6 होगा, sorry, और D10. तो क्या हो गया? F net is 0. Equilibrium हुआ कि नहीं? फिजिक्स में इतना तो पढ़ा है ना, F net is 0, that means an equilibrium condition. Yes, ma'am. So isn't it a stable condition? Yes. Yes, ma'am. So that is why we say जब भी हमारा सबशेल में अगर एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आती है या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आती है तो that leads to extra stability factors. Can you follow till here? Fully Yes, filled ma'am. conditions and half Yes. filled conditions will lead to extra stability. That is why inert gases लिखो, सब लोग लिखो inert gases की electronic configuration. Helium, neon, argon. लिखो जरा helium का atomic number 2, neon का 10 और argon का 18. लिखो उनकी electronic configuration. Write their electronic configuration. Have you written? Have you finished writing? I'm doing it. देखो हीलियम का लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 लिखा. नियॉन का लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? 1s2, 2s2, 2p6. चेक करो. और Yes. आर्गन का लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. So see, these are inert gases. You already know about inert gases. They Yes. don't react with anything. They are highly stable. Now, can you give me the reason why they are highly stable? Why they are highly stable? See, all of them are Because containing. they're full. They Because they are they're fully Yes. filled electronic. Yes. अब तुम्हारे घर में सब चीजें available है. Why will you go to the next house? Why will you take the help from someone else? So they have fully filled orbitals. That is why they show extra stability. Can you follow now? Yes, ma'am. Then you know nitrogen is an inert gas. तुमने पढ़ा था rancidity में. To some extent, nitrogen Yes, does not ma'am. react, and It is that is flushed in why. chips packets. Yes. So it is, yes. Why it is filled in chips packet? Because it has low reactivity. It's not like Yes, very ma'am. reactive like oxygen. Comparatively इसकी low reactivity होती है. अगर नाइट्रोजन की reactivity high होती तो हमारी air में ऑक्सीजन बचती नहीं, नाइट्रोजन उसके साथ react करती और कंपाउंड बना लेती. Yes, ma'am. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है. उसका रीजन अब समझ में आएगा. अब लिखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. It has half filled electronic वेरी configuration. गुड. सो देखो, अगर हम लोग नाइट्रोजन की लिखने जाएं तो इट इज 7. दैट इज 1s2, 2s2 and 2p3. व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? I'm a half-filled electronic configuration. A half filled Yes. electronic So configuration. P3 means half filled. So didn't I tell you roughly कि half filled और fully filled configurations show extra stability? और वहीं पर ऑक्सीजन का लिखो जरा. तो ऑक्सीजन का लिखने जाएंगे तो उसमें कोई भी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कंडीशंस नहीं है. तो इसलिए ऑक्सीजन इज हाईली 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 स्टेबल. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am.
चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No, ma'am. ऑक्सीजन का तुमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Yes, ma'am. कितना आया? Ma'am, neither half filled nor full filled. P shell has यस, तो 4 ये electrons. यस अभी अभी हमने लिखा भी था जब हमने मैंने क्वांटम नंबर्स बताए थे, तब मैंने तुम्हें बता ही दिया था नीदर हाफ फिल्ड नाइदर फुल्ली फिल्ड, इसीलिए इट शोज हायर रिएक्टिविटी और लोअर स्टेबिलिटी। ओके, कैन यू टेल मी अदर रिएक्टिव एलिमेंट्स? कोई और रिएक्टिव एलिमेंट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इस वक्त? एनी अदर रिएक्टिव एलिमेंट विच यू कैन रिकॉल? तो तुम खुद से चेक कर सकते हो, जितने भी अदर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे ना, उन सब में ये चीज होगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आते हैं हमारा जो मैंने कल आपको जो मैंने बोला था कि हम क्रोमियम एंड कॉपर को हमने स्किप कर दिया था। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अब इसको लिखने बैठे हैं तो क्या लिखेंगे? आर्गन, आर्गन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन्स तक की कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या लिखेंगे? 4s2 एंड 3d4। डू यू एग्री? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला था 3d4 नहीं लिखा जाता, उसका रीजन अब समझो क्या? 4s2 और 3d4, 3d4, 1 2 3 4। तो डोंट यू थिंक अभी तो देखो क्या है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, बट ये कुछ भी नहीं है। बट सपोजिंग इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर switches to here, if one electron from here goes over here, don't you think both of them will be fully half filled orbitals? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this will be like this. So this is here, and oh, this jumps over here. Okay, this jumps over here. Fine. So both of them becomes half filled, and half filled orbitals means extra Stable stable. atom. ठीक है, Stable. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो दैट इज द रीजन मैंने तुम्हें बोला था कल कि अपने को 3d4 और 3d9 नहीं लिखना है। उसका रीजन समझ में आया? हम लोग कभी ऐसे नहीं लिखेंगे, और यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। लेकिन अब तुम नहीं करोगे ना? यू वोंट डू इट नाउ ना? No, ma'am. सो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? 4s1 3d5. यस, और पीरियोडिक टेबल में इसमें लाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्रोमियम के नीचे, उन सब को हमें ऐसे ही लिखना है। मतलब अभी जो नेक्स्ट पीरियड का होगा उसको लिखेंगे 5s1 4d5 एंड सो ऑन। d4 नहीं लिखना है। रीजन समझ में आया क्यों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सिमिलरली if you move towards the next one is copper। ठीक है, कॉपर। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 29। 29 का मतलब क्या हो गया? इट इज गोइंग टू बी, वैसे लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d9। But because of again 3d9 means it is not full, but if the electron jumps from here to here, this will become 4s1 3d10, and this means this is half filled configuration, this is fully filled configuration. That means both of these subshells are leading to extra stability. Yes, ma'am. So that is the reason, note that you will never write d4 and d9। d4 और d9 अपन नहीं लिखते हैं, not accepted। Similarly अगर f सबशेल की बात करी जाए तो f सबशेल में तुम क्या नहीं लिखोगे? Ma'am, f6 F6. f13, क्योंकि वहां पर भी यही होगा, एक इलेक्ट्रॉन एस सब शेल से इनमें जंप कर करके इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो D4 इज रिप्लेस्ड बाय D5 बाय टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
4s subshell. Is it fine? Yes, ma'am. Everyone, other voices, please accept Yes, it. ma'am. Yes, ma'am. Everyone, are you getting this thing? You will not write chromium and copper में जैसे ही आएगा तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जाएगी कि यहाँ गड़बड़ होगी. Is it Yes, fine? ma'am. ठीक है. तो अब क्यों हो रही है ये भी रीजन समझ में आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है. अब तुम्हारे दिमाग में ना एक और चीज आ रही होती है. एक चीज क्या दिमाग में आ रही होती है, इसका मतलब है कि जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कार्बन का मतलब क्या हो गया 1s2 2s2 2p2, तो बच्चों के दिमाग में यहाँ पे एक चीज और आती है कि फिर हमें p2 और p5 को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. ये चीज आ रही है कितने लोगों के दिमाग में, किसी को नहीं आई? Yes, अगर ma'am. हम D4 D9 Yes, नहीं एक्सेप्ट ma'am. करते हैं, F6 F13 नहीं एक्सेप्ट करते हैं, we shouldn't accept P2 and P5 also. Is it Yes. coming into your mind or not? Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. तो that means अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का ये हो गया P2. So you should be like इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाना चाहिए, 2s1 2p3 बन जाना चाहिए. ये चीज दिमाग में आ रही होगी. Yes, ma'am. या फिर फ्लोरीन के केस में भी 1s2 2s2 2p5 ना लिख करके इससे इलेक्ट्रॉन को जंप करा देना. बट ऐसा नहीं होता है. उसका रीजन देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब हमारा ऑर्बिट जो होता है न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, तो तब तो वो स्फेरिकल रहता है ना. Yes, ma'am. एंड ओवरलैपिंग इज नॉट अबाउट टू टेक प्लेस. ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है. ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जंप नहीं कर पाते. इसलिए हम कार्बन के लिए नहीं लिखते हैं 2s1 2p3. we don't write it, we just write it like this because यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए requires lots and lots of energy. Lots of energy is required, which is not given at, which is not possible at room temperature. Will at room temperature. तो 2 temperature, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता रूम टेम्परेचर पे इतनी इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी देना कि हमारा इलेक्ट्रॉन एस सबशेल से पी सबशेल में भाग पाए. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो इसलिए पी वाले में कभी कोई ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं आता, लेकिन डी एंड एफ में एक्सेप्शंस आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है. उसका रीजन देखो. अब देखो, जब भी हमने लिखा, मैंने तुम्हें कल ही बताया था, अगर हम एन एस लिखते हैं तो एन पी सेम नंबर का रहता है कि नहीं रहता है? Yes, ma'am. लेकिन Yes, n ma'am. माइनस जो d N सबशेल minus होता है, 1 D and हाँ, N minus 2 तो F. मतलब देखो मेरे बगल में इतनी इतनी जगह तो हमेशा रहनी थी. तुम जबरदस्ती में आ रहे हो बीच में, तो आरंट यू डिक्रीजिंग द एनर्जी लेवल्स? तुम अपना एनर्जी लेवल खुद से, अगर कोई चीज बीच में आ जाती तो बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे बीच में तो इतना डिस्टेंस है, लेकिन इफ यू आर ऑक्यूपाइंग अ स्पेस इन बिटवीन, सो देयर विल बी लेसर डिस्टेंस बिटवीन अस. Yes, ma'am. देखो तुम्हारा जो, जैसे तुम्हारा फ्लैट है, तुम्हारा घर है, उसकी एक प्रिस्क्राइब्ड हाइट है कि इतने हाइट पर हमें रूफ देनी है. सपोजिंग 10 फीट पर अपने को रूफ देनी है. अब उसके बीच में तुम और पार्टीशन बना लो, मतलब बंक बेड बना दो, तो उनके बीच में हाइट कम रख पाओगे कि 10 फुट ही रख पाओगे? अगर हम उसके बीच में 2 बंक बेड डाल दें रूफ में, तो क्या हो जाएगा, पार्टीशन डाल दें तो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी या नहीं? डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द रूफ विल डिक्रीज और नॉट? स्टैंडर्ड घर जब मिला तो ये फ्लोर था, ये रूफ था, लेकिन हमें बीच में 2 घर और बनाने. तो जब हम बीच में पार्टीशन बनाएंगे लेवल 1 एंड लेवल 2, सो डोंट यू थिंक फ्लोर एंड रूफ के बीच का डिस्टेंस विल डिक्रीज? Yes, ma'am. ठीक है, तो सिमिलरली क्या था, NS और NP के बीच में डिस्टेंस बहुत हाई था. N, जैसे अगर हम बात करें तो 6s और 6p के बीच में डिस्टेंस बहुत हाई है, लेकिन अगर इनके बीच में 4f आ जाता है क्योंकि n-2f आएगा, या 5d आ जाएगा, डोंट यू थिंक द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग बिटवीन देम? डोंट यू थिंक द डिस्टेंस गेट्स डिक्रीज्ड बिटवीन देम? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यहाँ पर हो गया n-2 का f और यहाँ पर हो गया n-1 का d. तो यहाँ पर ये आ गए. ठीक है. The distance between them is decreasing. And why is this? Why are they coming in between? Because the orbits are becoming elliptical in shape and they are overlapping. Overlapping. ठीक है. So don't you think? देखो 6s से 6p में जाने का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन को s से p में जाने का मतलब क्या हो गया? उसको 2 लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे. That don't you think it requires very high energy? Don't you think it is requiring very high Yes, energy? ma'am. And whereas 6s से यहाँ जाने का मतलब क्या हो गया? लोअर एनर्जी की नहीं. देखो यहाँ जाने के लिए कंपैरेटिवली लेसर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. Yes. ठीक है. That is the reason electron jumps from S to F subshell. Electron jumps from S to D subshell easily. Okay, but S to P subshell at room temperature तो भाई पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम लोग कार्बन के में और फ्लोरीन के में नहीं करते हैं ये चीज. P3, P2, P5 is possible, but D4 and D9 is not accepted. Can you follow? Can you follow this? Why this is Yes, ma'am. accepted and why this is not accepted? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, so by providing high amount of energy, we can like Yes, you will do it in chemical bonding. अगर हम उनको एनर्जी देते हैं, that is why expansion of octet takes place. You know, मतलब ऐसे सल्फर को तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन SO3 का मतलब है उसमें 6 बॉन्ड बन रहे हैं. 6 बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? रीजन देखा जाएगा तो वो वही होगा कि हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं. That's why it is able to make 6 bonds. Phosphorus PCl5 मोर देन ऑक्टेट बॉन्ड्स बना रहे हैं ना. अभी समझा? Yes, ma'am. तो कब बनाएगा? अभी रीजन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. कब बनाएगा? वो रीजन भी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. फिर दूसरा, इसी चीज को अगर मैं दूसरे वे में एक्सप्लेन करूं तुम्हें, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल 4s है, फिर 3d है, फिर 4p. ये ऑर्डर चलेगा कि नहीं चलेगा? yes, ma'am. ठीक है. अब देखो इसका n+l वैल्यू लिखो, तो इसका n+l वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा? 4. 4 इसका plus 0. n+ वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा? 5. चेक करो मैंने सही लिखा है. Yes, ma'am. So now see, 4s means this 4s means it is having lower energy, Yes, ma'am. and 3d means this is having higher energy. But 4s जो है वो आउटर ऑर्बिटल है, बट वो 3p और 3d के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? मतलब 3p और 3d के बीच में इतनी स्पेस थी और बीच में 4s आ गया. तो टेल मी योरसेल्फ, एनर्जी गैप इज लो और एनर्जी गैप इज हाई? Energy gap between 4s and 3d is low or it is high? And it is high. बेटा एनर्जी गैप बिटवीन 3p and 3d इतना था, मतलब कोई Ma'am, I भी. think it should be low. You don't think? Are you following my point or not? That is the main thing. क्योंकि ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलेंगे, फिर कंफ्यूजन में मिल रहते रह जाओगे. तो एक्सप्लेन करना जरूरी था. देखो कोई भी s सबशेल लेते हो वो यहाँ रहता है, कोई भी p सबशेल लेते हैं तो वो इतने डिस्टेंस पे रहता है. ठीक है. कोई भी d सबशेल लेते हैं इतने डिस्टेंस पे रहता है. इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा. कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Can you understand this thing? The distance Yes, between ma'am. S subshell, P subshell and D subshell, मतलब अगर 3s, 3p और 3d की बात करी जाए तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा. Can you follow this thing? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. see who comes in between 3p and 3d? 4s. 4s. So see अभी भी the distance between 4p and 4d is high. But if I ask you the energy gap between 4s and 3d, the energy gap between 4s and 3d, is it high or low? What do you think?
Lower as compared to 3p and Low 3d. as compared to 3p and 3d. So don't you think the electrons can easily switch? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब फायदा होना चाहिए मुझे हायर एनर्जी लेवल पे जाने का, फायदा होना चाहिए, जबरदस्ती में नहीं जाएंगे, ठीक है, जबरदस्ती में नहीं जाएंगे, फायदा होना चाहिए। और वो फायदा क्या है, मुझे कुछ प्रॉफिट दिखना चाहिए, तभी तो हम जाएंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पे, दैट विल यू गो टू द हायर एनर्जी लेवल, व्हेन यू विल गो टू द 3D इलेक्ट्रॉन, इफ यू हैपन टू अटेन fully filled or half filled configuration. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. अब देखो 4s से 4p में इलेक्ट्रॉन जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप इज हाई। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. बट बिकॉज हमारे जो डी सब शेल्स होते हैं वो हमेशा बीच में आते हैं, या एफ सब शेल होते हैं वो भी हमेशा बीच में आते हैं, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है एस से पी में, एस से एफ में तो फिर भी पॉसिबल है, बट एस से पी में नहीं जा सकता, क्योंकि एनर्जी गैप इज हाई। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्रोमियम का क्यों हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, अभी क्लियर हुआ? क्रोमियम एंड कॉपर का, क्रोमियम एंड कॉपर का हम लोगों ने 4s1 3d5 या 4 कॉपर का 4s1 3d10 क्यों लिखा, रीजन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्योंकि S से P में, S से D में जाना इजी, D में एंड S से F में जाना इजियर है, S से P में जाना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा 2s1 2p3? Can you follow why? Why aren't you writing 2s1 2p6? Can you follow the reason? Yes, ma'am. Energy gap is high. Okay, so it cannot jump at room temperature. Energy gap is high, so it cannot jump at room temperature. ठीक है, और जिसको इतनी कहानी नहीं समझ में आई तो भी अपने को टेंशन नहीं है, उसको बस रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा क्या मारना पड़ेगा भाई, क्रोमियम आ जाता है तो वहां पर अपने को ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 4s1 3d5, ऐसे रट्टा मार लो कि d4 और d9। Ma'am, so we can say that because of this electronic configuration, like I have found out on silicon, it is highly unstable. So this same principle applies for silicon also, like for What is attaining half. what is the electronic configuration of silica, and who told you it is highly unstable? Silicon actually, like when catenation like is hardly able to form 7 to 8 chains, it is highly reactive at that stage. That's why. What please repeat again, you were too fast, I could not understand. Like last year we studied the organic chemistry, na? So ma'am, in that we were told that carbon is able to form high carbon chains. However, to show the property of catenation, our silicon is form able to form less carbon, less up to 7 or 8 times only because of this, because it is highly reactive, the chains. So ma'am, that So is it is reactive with comparison to carbon, not like that. Okay, this is the electronic configuration of silica. ठीक है, जब तुम नीचे जाते वो डिफरेंट चीज है, जो तुम सोच रहे हो वो डिफरेंट चीज है। हम लोग अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बाद में उनकी रिएक्टिविटी के लिए एक फैक्टर नहीं डिपेंडेंट होता, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर डिपेंडेंट। फाइन, and silica is very less reactive as compared to other elements like chlorine, fluorine or oxygen and all. That is the reason तुम्हारी जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, तुम्हारा इवन प्लास्टिक सर्जरी में सब कुछ सिलिका का ही यूज किया जाता है। क्यों, अब समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव एंड अ गुड कंडक्टर। जो तुमने Could अगर you कभी please tell the electronic configuration for silicon? see it is written, Ma'am, that along with that SPDF one, the spin one. हाँ तो लिखा तो है, एसपीडीएफ के साथ ही तो लिखा है, और कैसे लिखा है? Ma'am, that box one. It now you try to make it, ट्राई टू मेक इट। जो तुम रीजन समझ रहे हो वो हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक है, सिर्फ कुछ चीजों के लिए वैलिड है। रिएक्टिविटी एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती है, देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स आल्सो, द साइज, द शेप, अदर थिंग्स आल्सो आर इन्वॉल्व्ड। फाइन, Okay, ma'am. okay, now coming to the electronic configuration of ions. So how many types of ions do you have? Cations and anions too. Of ions,
So we have two types of ions. You can say cations and anions. How are anions formed? How are anions formed? Cations are formed by loss of Loss of electrons, electrons, and and anions anions are are formed formed by by gain of electrons. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब जो लॉस है और गेन है वो कहाँ पे अकर करेगा? स्ट्रांगली बाउंड पे या लूजली बाउंड पे? Loosely bound. So which is that one? The outermost electron. So loss Correct. of electron will also happen from outermost shell, and the gain of electron will also take place in the outermost shell. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है. So जैसे for example I talk about sodium. तो सोडियम एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Now which one is the outermost shell? Which one is the outermost subshell? Obviously जिसका n value ज़्यादा होगा वो outermost shell होगा. तो n value high, that will become the outermost shell. Can you get it? Yes, ma'am. High n value, because the value of n represents the number of orbit you're talking about. Yes, ma'am. ठीक है. And outermost shell को क्या बोलते हैं अपन? Valence shell. Unbalanced shell. So who is the valence shell over here? It is going to be the third orbit, and that represents loss of one electron. तो कितना loss जो होगा वो कहाँ से होगा? यहाँ से. Can you get how will you write the electronic configuration? Yes, ma'am. जैसे आर्गन जैसे कैल्शियम का लिखना है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस डायरेक्टली? Yes, ma'am. नाउ हु इज द आउटरमोस्ट शेल जिसका n का वैल्यू हाई है? Ma'am, n is equal to 4. So it is the outermost shell. So what will be the electronic configuration for this? The electrons will be lost from here. So I will be left with only electronic configuration of argon, Argon. and 4s will become 0. Can you follow? Yes, ma'am. Okay. Now supposing gain के लिए करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए करते हैं, तो ऑक्सीजन is 1s2, 2s2, 2p4. Now you are gaining 2 electrons. तो कहाँ पे जाएगा? Who is the outermost subshell? 2p? Yes, ma'am. That will become Yes, ma'am. 2p6. Yes. So it will become 1s2, 2s2 and 2p. 2p6. Supposing it is nitrogen. तो नाइट्रोजन का क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p3. But if I say -3, तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2p6. Can you follow till here? Yes, ma'am. Okay, very good. Now let us talk about metals. मतलब जो जहाँ पे हम लोग D का लेके आए. Supposing iron का electronic configuration लिखा, तो what will be the electronic configuration of iron? यहाँ तक 18 हो गए. इसका atomic number है 26. तो ये हो गया 4s2 और ये हो गया 3d6. अब बताओ what is the valency of iron? What is the valency of iron? I'm +2. And I'm +3 something. that is called as ferrous and ferric. You remember? Ferric. Yes. Now I will also explain it to you कि variable valency क्यों आती है. तो अब देखो अगर 2 electrons निकालने हैं तो निकालेंगे कहाँ से? From where will you remove 2 electrons? अरे कितना difficult question पूछा. From where will you remove? 4s2. Yes, क्योंकि who is the outermost electron? Outermost shell. Fourth shell is the 4. outermost shell. So देखो डालते टाइम भी पहले 4s में पड़ता है और निकालने में भी 3d से पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? 4s से. Can you get it? Yes, ma'am. डालने में भी पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं और निकालते टाइम भी इलेक्ट्रॉन पहले 4s से ही निकलते हैं. तो what will be the electronic configuration over here? Argon 3d6. Can you get it? Yes, ma'am. Now see, iron realizes कि अगर मेरा कोई एक और इलेक्ट्रॉन ले जाए तो मेरे पास half filled configuration आ जाएगी, and that will lead to extra stability or not? Yes, ma'am. So what happens? That is why it shows ferric. देखो 4s electrons are loosely bounded. Why they are loosely bounded? Because they are at the outermost or subshell. They are the, you can say this is the valence.
शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो बहुत इजी काम है क्योंकि वो लूजली बाउंड है, लेकिन 2 लूज करने के बाद आयरन को रियलाइज होता है यार 2 लूज कर रहे थे, एक और लूज कर ले तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा। आई विल कन्वर्ट इनटू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. So that is the reason iron shows variable valency, और in fact जितने भी d block elements होते हैं वो variable valency show करते हैं। अब reason समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Can you get it? Can you get it now? Yes, ma'am. तो हमें निकालना भी पहले 4s से है और डालना भी पहले कहाँ पर है 4s से, फिर 3d में। तो निकालते टाइम भी पहले हम लोग 4s से निकालेंगे, देन But 3d। how does it lose that one electron exactly? Beta, please don't put your messages on chat right between the class. I can't be too active. I am bad in multitasking. Is it fine? ठीक है, छोटा सा चीज था तो मैंने यस कर दिया है, या तो तुम क्लास Okay, में ma'am. पूछ लो, क्लास में पूछ लो, या फिर तो तुम्हारा डाउट क्या है ये बता दो, मुझे अब समझ नहीं आ रहा है। जितनी देर हम चैट में रिप्लाई करेंगे उतनी, और साइमल्टेनियसली आई कांट डू इट टू वेज। ओके, सो टेल मी व्हाट इज योर डाउट, पहले हम वही ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन बिटवीन एंड माय स्क्रीन पॉपिंग अगेन एंड अगेन। टेल मी व्हाट इज योर डाउट अबाउट सिलिका नाउ। Ma'am, I just wanted to know that whether silicon is reactive or not highly. How can it be reactive? Tell me the reason for its reactivity ना बेटा। Ma'am, because it is neither a half filled or nor a full filled. तो इट इज रिएक्टिव, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में तुम देखना चाहते हो वो एक फैक्टर है ना, किसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो वो एक फैक्टर है। अब इसको रिएक्टिव होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और ऑक्सीजन को रिएक्टिव होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और क्लोरीन को रिएक्टिव होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बताओ हाईली रिएक्टिव कौन हुआ, जिसको 1 मिलेगा, या पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? जिसका काम जल्दी बनेगा या जिसका काम देर में बनेगा? Jaldi. हाँ, तो किसका बनेगा? क्लोरीन का सबसे रिएक्टिविटी बनेगा कि नहीं? Yes, ma'am. और बेटा ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का है, रिएक्टिविटी में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा सकते हो ना, बीच में हर चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक एक चैप्टर ही इतने लंबे लंबे हैं। अब खुद ही एनसीईआरटी बुक में जाके देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना लंबा चैप्टर है। अब उसी में मैं रिएक्टिविटी डाल दूं, केमिकल बॉन्डिंग डाल दूं, तो सब खिचड़ी पकेगा कि नहीं पकेगा? Yes, ma'am. ठीक है, तो प्लीज खिचड़ी मत पकाओ अभी के लिए। अभी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही अपने आप को कंस्ट्रक्ट करो। मैम तो सिलिकॉन में बस ये पूछना था कि लास्ट शेल एम्प्टी कैसे रह सकता है, क्योंकि मैम एस कौन से सा पी शेल में एम्प्टी है? कौन सा शेल एम्प्टी मैम है? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p2 होगा। हाँ, हो गया। मैम तो 3p2 में मैम 3 डिविजन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैम फिट करने हैं हाँ मैम। हाँ, ठीक है, फिर मैम तो लास्ट शेल एम्प्टी नहीं रहेगा, क्योंकि मैम तो नॉर्मल रहने स्टेट दो, में तो एस से पी जाने रहने चाहिए, दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं ऐसे अगर तुम, एग्जिस्ट कर सकता है। अरे भैया करता है, करता है। अगर तुमने कल की क्लास नहीं अटेंड करी थी क्या? उसमें तुमने 3p1 में 2 खाली थे कि नहीं थे? और हुंस रूल में मैंने तुम्हें बताया था पहले विंडो सीट ऑक्यूपाई करो। भाई इससे पहला वाला मेंबर कौन है? इससे सिलिकॉन से पहले कौन आता है? बोलो जल्दी से, इतना टाइम लगाओगे सोचने में? एटॉमिक नंबर 13 कितना? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो Aluminium. एल्यूमिनियम के लिए लिखते 2p1 3p1 3p1, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? एक ही रहता, यस मैम। तो बाकी 2 ऑर्बिटल खाली रहेंगे। सिलिकॉन आया तो 2 भर गए, बाकी 1 खाली रहेगा। अब इसकी जगह फास्फोरस लेके आओगे तो 3 भर जाएंगे, 1 खाली रहेगा। सल्फर लेके आओगे तो 1 और फिल हो जाएगा, खाली रहेगा, ये दोनों अनपेयर्ड रहेंगे। फिर उसके बाद में तुम नेक्स्ट जो भी लेके आओगे, क्या होता है, क्लोरीन लेके आओगे तो देखो ये हो गया, और फिर आर्गन लेके आओगे तो ये हो जाएगा। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। और मैंने तुमको ये हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाली क्लास रिवाइज करना, तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो नोट्स, इसलिए तुमको ये प्रॉब्लम है। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ाते टाइम मैंने तुमको बोला ही था, वहां पे बनाए थे इस तरीके से बॉक्सेस कि अगर P1 होगा तो हम विंडो सीट ऑक्यूपाई करेंगे। इफ यू कैन रिकॉल, एवरीवन टेल मी, डिडंट आई टेल यू? पहले विंडो फ्रंट सीट ऑक्यूपाई करेंगे, देन Yes, क्या ma'am. करेंगे हम लोग, विंडो सीट पे ही पहले प्रेफरेंस देंगे। मैंने तुमसे बोला भी था बस में बैठते हो तो तुम क्या करते हो। फिर P3 के लिए मैंने बोला था फिर हमें विंडो सीट का जब ऑप्शन मिल रहा है तो चाहे बैक साइड मिल रहा है लेकिन हम ऑक्यूपाई करेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे सारे के सारे फुल हो गए तब हम क्या करेंगे, अब हमें विंडो सीट तो मिल नहीं रही है तो हम फ्रंट सीट ऑक्यूपाई करेंगे, आइल ले लेंगे। फिर ये मिल नहीं रही है तो हम पीछे नहीं जाएंगे, हम पहले आगे की सीट रोज को ऑक्यूपाई करेंगे, एंड देन जब ऑप्शन नहीं बचा तो यहाँ जाएंगे। तो खाली रह सकते हैं, अनपेयर्ड रह सकते हैं। अब डाउट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्लास के नोट्स रिवाइज करो वरना समझ नहीं आएगा। ओके, Okay, ma'am. that's why I keep on telling you, revise your notes and 5 to 10 questions जरूर करो, depending on the time you have. ओके, 60 क्वेश्चंस पर वीक का टारगेट दिया हुआ है ना तुम्हें, तो वो भी करना है और अपने नोट्स को रिवाइज करना है, वरना नहीं समझेगा ना। देखो हर चीज, इट्स नॉट 10th स्टैंडर्ड जहाँ थोड़ा सा सिलेबस होता है और उसी को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो रोज क्लास में नोट्स रिपीट होते रहते हैं, तो हमारे को मतलब फॉलो होता रहता है। अब यहाँ हमें रिपीटेशन का टाइम ही नहीं है, मतलब अभी भी अगर मैं स्कूल की स्पीड से कंपेयर करूंगी तो हम स्लो चल रहे होंगे, तो मुझे वो भी कैच अप करनी है, क्योंकि स्कूल में तो फिर पूरा सिलेबस आएगा ना जो वो पढ़ा देंगे, इतना डिटेल में फिर वो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ आज की क्लास इसमें वेस्ट की कि क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों होता है। अब इतनी सी बात को वो सिर्फ 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करेंगे एंड दे विल मूव अहेड, फाइन, बट आई वांट टू बी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो किसी भी लाइन से किसी भी वर्ड से बन जाता है। वी वांट टू बी मोर क्लैरिफाइड with the doubts, that's why we are giving so much time to each and every part of it. Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है, सो प्लीज अगर किसी का डाउट है तो तुम उसको पूछ सकते हो, इट्स नॉट लाइक वी डोंट एंटरटेन, एटलीस्ट आई थिंक कि हम पीसीएम में तीनों ही टीचर्स तुम्हारे डाउट्स तो एंटरटेन सभी करते होंगे, तो प्लीज ओपनली कर लो, डोंट कीप इट विद यू, फाइन। सो तुम्हारा लॉजिक ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन जब है निकलेगा भी 4s से पहले और जाएगा भी पहले 4s में। कैन यू फॉलो नाउ एवरीवन? एवरीवन? Yes, ma'am. So tell me now, supposing manganese का atomic number है 25, इसकी electronic configuration होगी argon 4s2 3d5। अब लिख के बताओ Mn plus 2 की क्या होगी, Mn plus 4 की क्या होगी, Mn plus 5 की क्या होगी और Mn plus 7 की क्या होगी, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो जरा। यहाँ पर क्या हो जाएगी +2 के लिए, +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लूज होंगे, 4s2. यस। अब 4s में कुछ बचा नहीं, तो अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, तो अब कहाँ से लेंगे? कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. This is 3d2 and 4s0, and now this is totally argon. Can you follow now? Yes, ma'am. Is it fine till here? तो अगर आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आती है तो अब लिख पाओगे? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, does manganese show these many states? हाँ, Ma'am, manganese इतनी सारी oxidation state show करता है? यस करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। देखो मैंने तुम्हें रीजन भी दिया, आयरन क्यों शो करता है, क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि भाई अगर मैं एक और दे देता हूँ, देखो 4s तो निकालना इजी है, वो तो हम समझ रहे हैं कि वो आउटर मोस्ट है, लेकिन उसके निकालने के बाद में उसको रियलाइज होता है कि भाई अगर मैं एक और दे देता हूँ तो मैं हाफ फुल में कन्वर्ट हो जाऊंगा, तो देने को तैयार हो जाएगा कि नहीं। Yes, ma'am. तो इसलिए जो इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ओवरलैपिंग आ जाती है, दे टेंड टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वेरिएबल वैलेंसी। Ma'am, तो manganese 6+ नहीं हो सकता है, 3d1 नहीं हो सकता? 3D 3d1 3D1 होने में देखो फायदा नहीं दिख रहा उसको,
मतलब जनरली वो स्टेबल, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझसे बोला जाए मैंगनीज की कौन सी स्टेबल होंगी, होने को वो भी हो सकता है, मैंगनीज +6 भी होगा, +3 भी होगा, सब कुछ होगा, बट अगर मुझे पूछा जाए ज्यादा किसकी होगी तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगी। कैन यू फॉलो नाउ? मैम 3D2 बनाने में क्या फायदा है? अरे भाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं आ रहा है? मैम 3D2 में 3D2 बनाने में फायदा नहीं, तभी तो मैंने उसके आगे स्टेबिलिटी नहीं लिखी ना। Mn+3 भी पॉसिबल है, +4 भी पॉसिबल है, +5 भी पॉसिबल है, +6 भी पॉसिबल है, बट दे आर नॉट स्टेबल वंस। यस मैम। ठीक है, मैम बट Mn+1 पॉसिबल है? पॉसिबल तो है ही, Mn+1 भी पॉसिबल है, बट इट इज नॉट स्टेबल। तो मैम मैंगनीज को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो लास्ट स्टेबल स्टेट पे पहुंचने के लिए? कौन सी लास्ट स्टेबल? मैम लास्ट या आर्गन आर्गन का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ इक्वल कहाँ है। से एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बताओ? मैम Mn+7 में। कैसी एक्स्ट्रा एनर्जी की बात करना चाह रहे हो तुम? मैम मतलब हम लोग एनर्जी देंगे ना, लाइक आइदर हीटिंग और इरिटेटिंग। Why will you give it? I am मैम तो removing the electrons ना, तो ओनली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली एनर्जी जरूरत पड़ेगी ना, हीटिंग की क्यों जरूरत पड़ेगी? तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, तुम कौन से मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कंफ्यूजन आ रहा है तुमको, तुम क्यों जा रहे हो उस पॉइंट पर एनर्जी गिविंग या टेकिंग में? ये तो हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना। सोडियम आयन में कैसे कन्वर्ट होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल करके किया था क्या? यस मैम। तो वही तो कर रहे हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। So NaCl बनता है, that is isn't it a combination of sodium ion and chloride ions? यस Sodium मैम। gives and chlorine takes. Sodium gives and chlorine यस मैम। takes, यस मैम। and it gives you only one electron. Why? क्योंकि उनको म्यूचुअल फायदा दिख रहा है ना। तो ऐसे ही मैंगनीज को अपना म्यूचुअल फायदा दिखेगा कि भाई मैं 2 दे दूंगा तो मेरा हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ जाएगा, बट ये तभी 2 दे पाएगा जब कोई डोनर आएगा, जब कोई लेने को आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अपनी मर्जी से 2 नहीं दे सकता है। यू विल बिकम एन डोनर ओनली इफ देयर इज एन एक्सेप्टर। तुम 10 रुपए का नोट देना चाहते हो तो अंबानी को तो दे के आओगे नहीं, ठीक है? तुम उसके लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए ना जो उसके 10 रुपए की नीडेड हो, जिसको 10 रुपए में फायदा हो दिखेगा। तो तुम तब तक डोनर नहीं बन पाओगे जब तक तुम्हें कोई एक्सेप्टर नहीं मिल जाता। तो Mn+2 तब तक नहीं आ जाती जब तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आ जाता जो उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने को तैयार हो। अब समझा? ओके मैम। एंड दैट ऑल वी विल डू इट इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? अभी और कोई डाउट रह गया? तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो गया? Mn+2, 3, 4 सब पॉसिबल है, लेकिन अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का भी Ca+1 भी पॉसिबल है, हम लोगों ने यहाँ किया था ना। तो कैल्शियम+1 भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं है ना। कोशिश करेगा कि वो दोनों के दोनों दे दे ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इजंट इट लीडिंग टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी? तो काम करो तो ऐसा करो ना कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अब O- भी पॉसिबल है, N- भी पॉसिबल है, N-2 भी पॉसिबल है, लेकिन हम नहीं पढ़ते इनको। क्यों नहीं पढ़ते? टेल मी द रीजन नाउ। because they are not stable. Because they are not stable. Because Yes, it will not and lead to even if they are formed for a very short span of life. ठीक है भाई, पहले N ने एक लिया होगा, फिर दूसरा, ऐसा थोड़ी ना होगा तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली आके अटैक कर गए होंगे। पहले एक लिया होगा, फिर दूसरा लिया होगा, फिर तीसरा लिया होगा। इट इज हैपनिंग इन स्टेप्स ओनली, बट वी डोंट स्टडी देम, वी जस्ट इग्नोर देम बिकॉज आइदर दे आर फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, और इधर हमारे को कुछ पढ़ने से फायदा नहीं हो रहा है, हमें तो यहाँ से फायदा हो रहा है ना, क्योंकि यही हमें स्टेबल दिखेगा। फाइन, Yes. यस मैम। ठीक है? तो हर एक एलिमेंट की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल, इवन इफ आई से N+ भी पॉसिबल है, लेकिन उसको रियलाइज होगा भाई क्यों मैं प्लस बना रहा हूँ, मेरे को तो जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, लूज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो छोड़ देता है करना। ओके, इज इट फाइन? Yes, ma'am. Ma'am, so here, ma'am, in the math, ma'am, so Mn+4 and Mn+5, and they are not very frequently occurring, and even if they No, do, they even if do they occur but they are not very stable ones, so that's why जनरली तुमको जब भी पढ़ाया जाएगा तो मैंगनीज की +2 या +7 ज्यादा पढ़ाई जाएगी। लाइक तुमने अगर सुना भी होगा तो Mn2O7 ज्यादा सुना होगा, या फिर MnO ज्यादा सुना होगा।
मैंगनीज के कंपाउंड्स अगर पढ़ दोगे तो MnO and Mn2O7 ज्यादा होते हैं. Yes, ma'am. So basically, Mn plus 4 and plus 5 do occur, but they don't occur very much, and even if they occur, Yes, and the reason they is don't clear in last front long. of you, na. Reason Yes, is also clear why they don't occur too much. yes, ma'am. Getting it now? Yes, ma'am. Every element can show all the oxidation states, but it is like either very difficult or near to impossible or for a very short span of life. तो हम नहीं उनको इतना ज्यादा ध्यान देते हैं. ठीक है अभी? ठीक है? Shall I proceed further? Yes, ma'am. अब देखो एक और चीज होती है जो हम लोगों को पढ़नी होती है. इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट में तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है. दैट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1 h अपॉन 2 पाई Bohr magneton. Bohr magneton is the unit of magnetic moment. Magneton is the unit of this. ठीक है? इसको h upon 2 pi को कभी कभी किसी बुक में तुम्हें ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा h dash. तो h dash का मतलब है they are telling you it is h upon 2 pi. Okay, fine. So what is magnetic moment? अरे बेटा बता रही हूँ मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वो फिजिक्स में करोगे. हमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड काम करना है. हमसे क्वेश्चन से फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल हमसे बोला जाता है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn plus 2. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn plus 2. 1 minute. Is it audible? Yes, ma'am. ठीक है. सो सी इफ समवन आस्क यू, मतलब यहाँ पे कुछ भी अंदर नहीं घुसना है. दैट यू ऑल बी स्टडी इन फिजिक्स. वी जस्ट आर कंसर्न विद द फॉर्मूला थिंग. वी आर जस्ट कंसर्न विद द फॉर्मूला थिंग. तो फॉर्मूला वाइज जैसे फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन कम्स कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ of nitrogen atom. तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड टेल मी हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू हैव. How many unpaired electrons we will have? How many? Count and tell me. 3 unpaired electrons. 3 unpaired electrons. ठीक है. So what will be the magnetic moment? How will we write? 3 into n plus 2 है. Sorry, my mistake. मैंने शायद n plus 1 लिख दिया. n plus 2. ठीक है. तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 plus 2 is how much? 5 and this Bohr magneton. तो ये कितना आएगा बताओ जरा. अंडर रूट 15 की वैल्यू कितनी होती है? What is the value of under root 15? Do you know the division method to find the under root? अरे आता है कि नहीं आता है? Do you all know the division method to find the under root? Maths में. Yes, ma'am. So tell me what will be the value? ये क्या हो जाएगा? 3.9, 9 9s are 81 and 8 6 are 54. ये तो बड़ा हो जाएगा. तो 8 से 3.87. हाँ, तो it will be 3.87. Now try doing it yourself. What will be the magnetic moment for oxygen atom? Find the magnetic moment for oxygen atom. Oxygen atom. Try करो. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2 and 2p4. 2p4 कैसे लिखोगे? पहले सब विंडो सीट, फिर एक बचा रह गया तो आयल की फ्रंट सीट. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2. So solve it.
2 unpaired electrons. So what is the magnetic moment? So it will be under root of how much? 8. Under root 8 means what? Solve karo. 2.8. 2.8. Can you get it? तो देखो मैं तुमको एक रफली चीज ये बताना चाह रही थी कि Excuse me, जितने हाँ ma'am, we will not multiply it by h upon 2 pi. अरे तो कर लेना, हाँ सॉरी कर लेना, ठीक है। तो मैं तुमको एक रफली ये चीज बता रही थी, कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो उसी के अप्रॉक्स आती है। जैसे 3 थे तो देखो 3.18 आ रही, 3.8 आ रही है, 2 थे तो 2.8 आ रही थी। तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ये याद रख सकते हो 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, तो इससे भी हमारा काम चल सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे क्लोरीन, अगर सपोजिंग n की वैल्यू 1 होती तो बताओ क्या होता, अंडर रूट 3 होता, और अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालो जरा कितनी है। 1.8 approx. Yes, so again see, isn't it like that? Isn't it like that कि 1 है तो 1.8 हो गया, 2 है तो 2.8 हो गया। Yes, ma'am. Are you following? Are you following? Yes, ma'am. Okay, then move to the next one। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी स्पिन आती है उसको हम लोग ऐड करते चले जाते हैं, मतलब दैट इज इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टोटल स्पिन। जितनी भी आती है उसको पहले हम मल्टीप्लाई, हम ऐड करते चले जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ नाइट्रोजन एटम, स्पिन ऑफ नाइट्रोजन एटम, या फिर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन एटम will have only one electron. Do you agree with this? Yes, ma'am. उसकी स्पिन क्या होगी, only plus half. What will be the spin of that electron, half होगी। Yes, ma'am. If I talk about helium atom, तो हीलियम में क्या हो जाएगा, एक प्लस हाफ होगी, एक माइनस हाफ होगी, एंड टोटल स्पिन विल बिकम 0। Yes, ma'am. सो कैन एंड देन सी अगेन, अगर हम लिथियम में करते तो 3 होंगे, तो 3 कैसे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, they will be placed something like this. What does this mean? Though 2 electrons are with plus half spin and 1 electron is with minus half spin. So what is the net spin? Can you get it? Yes, ma'am. Can you get it? So in मतलब अगर मैं रफली बात करूं तो कहना है से, अब तुम बेरिलियम की भी चेक कर लेना, तो बेरिलियम में ऐसा हो जाएगा। सो अगेन चेक इट, व्हाट विल बी द टोटल स्पिन, खुद से बताओ। 0. 0। So can I say basically total spin depends on the number of unpaired electron। देखो यहाँ number of unpaired electron 1 था तो इसलिए प्लस हाफ आ गई, यहाँ पे भी 1 था तो प्लस हाफ आ गई। तो बेसिकली कहना है से टोटल स्पिन डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अगर पेयर्ड होंगे तो स्पिन 0 हो जाएगी। Yes, ma'am. Okay, so I can write total spin is equal to क्योंकि जहां पे भी पेयरिंग होगी वहां 0 हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनटू हाफ। जैसे अगर मुझे नाइट्रोजन के लिए बोला जाता है टोटल स्पिन निकालने के लिए, टोटल स्पिन दैट इज S, तो हम कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 की बताओ टोटल स्पिन क्या आएगी, व्हाट विल बी द टोटल स्पिन ऑफ 1s2? 0. 0। 2s2? 0.
0. Then 2p3. How many unpaired electrons? 300. Yes. So what will be the right number of unpaired electrons? N into half. तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी देखो, अगर तुम करने भी जाते हो तो देखो यहाँ पर अगर करते भी हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो इट इज 3/2, और चाहे यहाँ से कर लो 3 into 1/2, that is 3/2. Can you understand this thing? Yes, ma'am. For nitrogen atom. Similarly, if you do it, what will be the total spin for oxygen atom? Now, oxygen atom में क्या difference हो जाएगा? What will the difference in oxygen atom? 1, 2, 3, 4. Number of unpaired electron कितने हो गए? 2. So what will be the total spin? 1. 1. Either you do half plus half or you do like this. दोनों way में total spin 1 आएगी. Yes, ma'am. ठीक है, अब टोटल ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है ये हमें नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे, हमसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज टोटल स्पिन, डिफाइन करो, ये सब मतलब डिफाइन क्या मतलब क्या है इसका सिग्निफिकेंस, ये सब नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम नॉट डूइंग इट. इफ यू आर वेरी कीन यू कैन जस्ट गूगल आउट, बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग अपने सिलेबस पे ही कंस्ट्रिक्ट रहते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत चीज़ें पढ़नी है, तो इसलिए मैं इतना ही पार्ट बता रही हूँ. बाकी पढ़ने के लिए तो तुम्हारे पास पूरा गूगल पढ़ा है, पूरी लाइफ पढ़ी है, ठीक है. तो अभी जो 2 साल हैं उनमें हम थोड़ा अपने सिलेबस के आसपास ही रहेंगे. ऐसा नहीं है, समटाइम्स इफ यू आस्क आई टेंड टू टेक यू आउट ऑफ द ब्लॉक ऑल्सो, बट नॉट ऑलवेज. तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ फॉर्मूला यूसेज की है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो हम इसको यहीं तक ही रखेंगे. इज इट फाइन? मैग्नेटिक मोमेंट तो वैसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है जब रोटेशन कराते हैं. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ओके, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं. जो भी अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग उसमें आगे का कंटिन्यू करेंगे. तो अभी तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हारे पास देखो मल्टीपल सोर्सेज है, लाइक तुम्हारा मॉड्यूल है, तुम्हारी स्कूल बुक है, तो तुम्हें सिर्फ क्या टॉपिक्स नहीं सॉल्व करने हैं, जैसे कि कुछ ग्राफ्स बने होंगे, ठीक है, साई से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस होंगे कुछ भी, वो क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाओगे. नोड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो तुम नहीं कर पाओगे, बट क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो सब तुम कर पाओगे. सो फॉर द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू सॉल्व ऑल टाइप्स, जो भी सोर्सेज है, जैसे स्कूल बुक से देख लिया, उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस देख लिए, इनको नहीं करना है, बस ग्राफ साई और नोट्स वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं. स्कूल बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज के हो गए, सॉल्व एग्जांपल्स हो गए, वो करना है. फिर तुम्हारे पास तुम्हारा मॉड्यूल भी मिल चुका है ना, तुम्हें इसका मॉड्यूल भी मिल Yes. चुका है ना अपने को, वो करना है. फिर हमारे पास नरेंद्र अवस्थी की पीडीएफ है, वो करनी है. तो जहाँ जहाँ से सोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ वहाँ से क्वेश्चंस करते जाओ. इवन पास्ट ईयर पेपर्स हैं, तो पहले मतलब लेकिन ऑर्डर ये रहेगा, पहले ये फिर इफ यू वांट यू कैन मतलब इन दोनों में स्विच कर सकती हो, ठीक है. और नरेंद्र अवस्थी में सिर्फ लेवल 1 करना है, नॉट बियॉन्ड दैट. ओके, अभी के लिए लेवल 1 करना है. इफ यू आर डन विद लेवल 1 देन आई कैन गो टुवर्ड्स लेवल 2, बट अभी लेवल 1 ही रखते हैं. इज इट फाइन? Yes, ma'am. फाइन, मतलब इतना अपने को करना ही करना है. अभी हमारे पास टाइम है तो इसलिए प्लीज फिनिश कर लो उसे, क्योंकि बाद में और चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, रिवीजन बढ़ता जाएगा, टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है. तो अभी इतना फिनिश कर लो. सो दैट्स इट. Yes. ओके, तो आई एम एंडिंग द सेशन फॉर टुडे. Thank you.